Hey viewers, you are watching this Saveda and I am Shudha. The ongoing tensions in West Asia, often referred to as the Gulf conflict, have begun to impact India's sports goods hub in Jalandhar, known for its large-scale manufacturing of sports equipment. The city is now facing supply and export challenges. Manufacturers in Jalandhar depend heavily on raw materials imported through the Strait of Hormuz. Disruptions in the key shipping route have delayed shipments and increased transportation costs. This has directly affected production cycles. Export orders are also slowing down. The Gulf region is a major market for Jalandhar sport goods. Countries like the United Arab Emirates and Saudi Arabia regularly import equipment such as cricket bats, footballs, and fitness gear. With uncertainty, rising buyers are either delaying orders or reducing volumes. Local manufacturers say the situation is becoming difficult. Many small and medium enterprises are struggling to manage rising costs. Freight charges have surged due to higher risk premiums in the conflict zone. Insurance costs for shipments have also increased sharply. There is also concern over delayed payments, and business exporting to West Asia are facing longer payment cycles. This is putting pressure on cash flow, especially for smaller units. The impact is visible across the industry. Production units are operating cautiously. Some factories have reduced output to avoid excess inventory. Others are exploring alternative markets to offset losses. Industry experts warn that prolonged tensions could hurt the sector further. Jalandhar contributes significantly to India's sports goods exports. Any disruption can affect employment and local economic activity. The situation has also pushed exporters to look for new routes. Some shipments are being diverted through longer maritime paths. However, this adds to delivery time and cost. Despite the challenges, manufacturers remain hopeful. They expect the situation to stabilize if shipping routes become secure again. Government support and diplomatic efforts are also seen as crucial in easing the pressure. The crisis highlights how global conflicts can impact local industries. For Jalandhar, the stakes are high. The city sports industry now waits for stability to return to key trade routes and restore normal business operation. देखो जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है इसमें तो व्यापक रूप से मतलब जो इस युद्ध का असर चल रहा है। ये जो युद्ध है ये विश्वव्यापी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे लघु कुटीर उद्योग हैं, मैं पंजाब के उद्योगों की बात करूं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की करूं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जितना हमारे प्रोडक्ट हैं ये सारे पेट्रो बेस्ड हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हैं हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये भी पेट्रो बेस्ड हैं और उनमें लगभग 50% से लेकर 70% तक कच्चे माल में उछाल आ गया। और जो ये पेट्रो बेस्ड मटेरियल हैं ये देश में लगभग 2-4 घरानों का इन पे कब्जा है, उस इस कारोबार पे उनका कब्जा है। और ये नित्य प्रति और हर रोज़ रेट बढ़ रहे हैं और हर रोज़ बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके कच्चे माल के दाम 2 गुना हो गए हैं, 1.5 गुना हो गए हैं और उस भाव में भी बाज़ार में माल उपलब्ध नहीं है। जो छोटा उद्योग है, हमारे जैसे जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। वो कारखाना बंद नहीं कर सकते। अगर वो आज उत्पादन कम करते हैं तो श्रमिक वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ना तो पंजाब में अपनी लेबर है, महंगी बिजली है, पंजाब में कोई कच्चा माल पैदा नहीं होता है, या तो बाहरी राज्यों से है या फिर विदेशों से है। और ज़्यादा पेट्रो बेस्ड आइटम तो सारी इम्पोर्टेड है। और जिन घरों का कब्जा है, घरानों का कब्जा है पूरे देश में इन प्रोडक्ट्स पर, उनकी मनमर्जी चल रही है। मेरी तो केंद्र सरकार से भी अपील है, राज्य सरकार से भी। वैसे तो राज्य को ये मुद्दा केंद्र के समक्ष रखना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसके लिए निगरान कमेटियां बनाने की तुरंत आवश्यकता है। जैसे विगत दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से ऑनलाइन बैठक की है, इसी प्रकार चाहे वो राज्य के प्रतिनिधि जुड़े जाएं या केंद्र के प्रतिनिधि हों,
और उन घरानों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये तालाबंदी के कगार पे आ जाएंगे छोटे उद्योग, बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार उत्पादन लागत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आज डेट और है कल और है, और ये सभी जो छोटे उद्योग हैं ये बड़े सप्लायर्स पे निर्भर करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हैं चाहे वो बिग हाउसेस हैं। तो अगर इनके पास जो ऑर्डर हैं ये अगर उनको सप्लाई नहीं देते तो मुसीबत में है, अगर ये देते हैं तो मुसीबत में है। ये बीच मझदार में फंसे हुए हैं, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मजदूरों की बात करें तो मजदूरों की भी आय दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इस काफी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। 80% लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, ये दोहरी मार है उद्योग के लिए, ये छोटे उद्योग के लिए दोहरी मार है। बहुत से श्रमिक जो हैं वो मैक्सिमम इस समय जो लेबर इन्वॉल्व है पंजाब में वो यूपी से है। बाहरी राज्यों से कोई लेबर अब आती नहीं, ना हिमाचल से, ना J&K से, ना बिहार से। और ये जो यूपी से श्रमिक हैं इनमें से बहुत से घरों को लौट रहे हैं, चाहे एनी रीज़न, कईयों के कोई पारिवारिक काम है, और कई लोग इसलिए लौट रहे हैं कि उनको ओवर टाइम में काम नहीं मिल रहा और उनकी घरेलू ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए छोटा उद्योग दोहरी मार झेल रहा है। श्रमिकों की भी मार है, कच्चे उत्पादन की मार है, और आगे बहुत बड़ा संकट है। अगर इसी प्रकार युद्ध जारी रहा या सरकार ने नियंत्रण नहीं किया उन कारोबारी घरानों पर, तो छोटे उद्योगों की तालाबंदी निश्चित है। कितने % जो है व्यापारी प्रभावित हुए हैं इस जंग से? देखो, मैं समझता हूँ सारे कारोबारी प्रभावित हैं, और ये अंतोगत्वा तो आम आदमी प्रभावित है, पूरी जनता को प्रभावित होना है। लेकिन छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए अब फैक्ट्री चलाना बहुत बड़ी एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ये केंद्र के और राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। राज्य सरकारों को ये समस्या केंद्र के समक्ष रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि तो वही हैं, और उनको मैं समझता हूँ, अब मैं पंजाब की बात करूँ तो कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पे नहीं बोल रहा, कोई पार्टी इस बात पर, किसी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है, और सरकार का तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसे देखते हैं अगर ऐसे हालात रहे तो क्या क्या फैक्ट्रियों पर वो असर पड़ेगा? देखिए, अगर कच्चा माल जो है 50% से लेकर 70% तक बढ़ जाता है, तो आप कल्पना कीजिए उत्पादन लागत की, आप कल्पना कीजिए कि कैसे वो काम कर पाएगा छोटा उद्योग जो है। और ये छोटे उद्योग हैं, ये वास्तव में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। सरकारें इस बात को कभी समझ नहीं पाई सभी, और पंजाब की सरकार, वर्तमान सरकार का ध्यान उद्योग की तरफ नहीं है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उद्योग इस समय इतने भारी संकट में हैं, और राज्य सरकार का GST विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है प्रतिदिन, जबकि इस समय इन उद्योगों की सार लेने की आवश्यकता है। ये दोनों तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं ये दो तरफ का मार खा रहे हैं। दोहरी सरकारी मार खा रहे विभागों हैं। की मार खा रहे हैं, कच्चे माल की मार खा रहे हैं। संकट गंभीर है, लेबर का संकट है, कच्चे माल का संकट है। उद्योगों का सर्वाइवल इस समय मेरे को नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसे हालात रहते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ये सुधर जाएं हालात, लेकिन सरकार को उन घरानों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है जिनकी मनमानियों से छोटे उद्योग पिस रहे हैं। लेबर आसानी से मिल रही है। ना लेबर है, ना कच्चा माल है, और ना उसके कोई रेट हैं इस समय, और ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर उत्पादन बंद करते हैं तो कल को लेबर कहाँ से लाएंगे? कल को अगर सप्लायर को ऑर्डर वाला माल नहीं भुगताते, नहीं देते, तो कल को उनसे जो पैसे लेने कैसे मिलेंगे, आगे से काम कैसे लेंगे? ये बड़ी बड़ी संकट की बात है। आज मान लीजिए मैंने कोई 8 दिन पहले ऑर्डर लिया है, मैं माल बनाना शुरू करता हूँ तो कच्चा माल 10, 15, 20% और बढ़ जाता है। तो ये फैक्ट्री बेच के तो माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने जैसे अभी एक कल परसों कदम उठाया है, जितने ये पेट्रो बेस्ड मटेरियल हैं इन पे इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म की है, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 7% ड्यूटी है, और वो उन घरानों को ही उसका लाभ होने जा रहा है।
जो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। केंद्र को उन घरानों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कौन कौन से हैं वो घराने? मुख्य रूप से 2-4 घराने ही हैं, पूरे देश में उनका ही कारोबार है, और इन उत्पादनों पर, इन कारोबार पर तो पूर्ण रूप से उनका कब्जा है। तो सामान भी कुछ महंगा हुआ है स्पोर्ट्स का। बिल्कुल स्वाभाविक ही है, कीमतें बढ़ रही हैं, और वो आगे जो हमारा बायर है वो हमें मजबूर कर रहा है कि हमें, हमारा ऑर्डर है पिछला, हमें सप्लाई किया जाए। वो कैसे कर पाएंगे ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि रोज के रेट हैं। अगर मैं आपको छोटे छोटे ये छोटी छोटी बातें बताता हूँ। ये देखिए, एक हमारा मटेरियल है, MBD है, 320 रुपये किलो था, आज वो 410 रुपये में अवेलेबल नहीं है। MBDF है, वो 320 था, वो 400 रुपये में है। TMT है, वो 210 रुपये kg था, आज वो 300 रुपये में नहीं है। आम कलर जो यूज़ होते हैं 700 रुपये किलो के हैं, वो आज 780 रुपये में अवेलेबल नहीं है। और छोटे छोटे जो मटेरियल हैं, सॉल्वेंट होता है, पेट्रोल बोलते हैं हम अपनी भाषा में, हमारे फैक्ट्री में, तो 70 रुपये 78 रुपये वो था, आज वो 170 रुपये है। काम कैसे करेंगे? 78 रुपीज़ की आइटम आज 170 रुपये में मिल रही है। तो ये बेस आइटम है हमारे उत्पादन की। PVC बढ़ गई, सारे पॉली प्रोडक्ट बढ़ गए, HD, PP, हर आइटम, और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कोई ये रुका नहीं है रेट, तो ये रोज के रेट है। अगर मैं आपको कुछ रेटों की बात बताऊं तो आप ये देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उद्योग कितना प्रभावित है। जो मटेरियल था कुछ दिन पहले हमारे पास, LD 185 रुपये किलो में पॉली बैग्स थे, आज वो डबल रेट पे हो गए। छोटा मटेरियल, कच्चा माल जो था, जो मटेरियल HD का 95 रुपये 95 रुपीज़ पर kg था, आज वो 170 रुपये kg है। ये मतलब बाजार के रोज के रेट हैं, और इन रेटों पे भी माल भी उपलब्ध नहीं हो रहा, और हमारी हिम्मत भी नहीं बढ़ रही। कैसे लेंगे? रबड़ 160 रुपये किलो थी, कल का रेट 210 रुपये था, हालांकि रबड़ का रेट भी रोज निकलता है। इसी प्रकार केंद्र को चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो घराने इसका रेट जारी करे रोज का, बचने का एकमात्र यही उपाय है, और उन पर अंकुश लगाया जाए। नहीं तो छोटा उद्योग है, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री की बात करूं, बहुत छोटी इंडस्ट्री है, और इसमें प्रयुक्त होने वाला 75% मटेरियल पेट्रो बेस्ड है। ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है इस समय। तो क्या सरकारों से क्या अपील करना चाहते हैं? यही कह रहा हूँ मैं, तो दोनों सरकारों से कह रहा हूँ, और केंद्र सरकार को के समक्ष राज्य को ये मुद्दा उठाना चाहिए। और अगर सरकार ये नहीं कर पाती ऐसा, तो ये संकट रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। मैं तो समझता हूँ ये उन घरानों की हम मनमानी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, दिक्कत होगी, ठीक है, कुछ रेट बढ़े हैं, लेकिन ऐसे रेट नहीं बढ़े हैं कि हर कच्चा माल दो गुने रेट पे मिल रहा है, लगभग डबल। ऐसी तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। अगर केंद्र ने ड्यूटी छोड़ी है तो ये उनके लिए है, और वो हमें क्या दे रहे हैं? रोज का रेट। केंद्र को चाहिए, वो भी बढ़ाकर, राज्य सरकार को चाहिए, ये इमीडिएट, जैसे ना आपातकाल होता है ना, इमरजेंसी, ऐसे हालात बनाने चाहिए सरकार को कि इन लोगों पर मतलब ऐसा अंकुश होना चाहिए कि ये मनमानियाँ ना कर सके। क्योंकि ये आम उत्पादन नहीं है देश में, आम ये वो फसल तो है नहीं है जो हर राज्य में हो रही है। ये सारा इम्पोर्टेड मटेरियल है, सारा इनके कब्जे में है, और इनकी मनमानी का हम शिकार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। Stay tuned with us for more updates. To like, comment, share and subscribe the channel.